लास्ट वीडियो में कुछ वर्क दिया था, उम्मीद है आपने वो काम कर लिया होगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक से, रिडॉक्स का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आपने क्लास 10th में केमिकल रिएक्शंस की कुछ टाइप्स स्टडी की थी, उन्हीं की तरह रिडॉक्स के भी टाइप्स होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस को हम 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। The first type of redox reaction is addition. The second is decomposition. Third is displacement. Which is further divided into 2, that is metal displacement and the second is non-metal displacement. And then the fourth is disproportionation. We are having 4 types of redox reactions: the addition redox reaction, decomposition redox reaction, displacement, which is further categorized into 2, metal displacement and non-metal displacement, and the last one is disproportionation redox reaction. The above 3 names you have already heard in your class 10th chapter chemical reactions and equations. Addition, decomposition and displacement are almost similar to that reactions. So we will start with the first, addition redox reaction. We have already studied about the addition reactions. What the addition reactions are? When substrate is being added with reactant to produce a new product. Whenever substrate is added with reactant to produce one new product, the reaction is addition reaction. Now the given addition reaction is redox or not? If the substrate or reactant or both is having any element, single element, then the reaction is addition redox reaction. I'll explain you. Suppose we are having sodium plus chlorine, which gives us NaCl. This is an example of addition reaction because here sodium is being added with chlorine to produce a new product, that is sodium chloride. You can observe over here that this sodium is an element and chlorine is also element. That means molecule made by single type of atoms, similar type of atoms, that means elements. Here sodium and chlorine both are elements. That means the substrate and reactant both are elements. So the reaction is redox addition reaction. Nitrogen, whenever added with hydrogen, produces ammonia. Here again we can observe that nitrogen is an element, hydrogen is also element. These are not compounds. They are not compound, they are simply elements. So if the reactants and substrate are element, the reaction is redox.
SO2 plus O2 gives SO3. Sulfur dioxide when added with oxygen gives sulfur trioxide. In this reaction, sulfur dioxide is not an element. It is a compound, molecule of a compound having two types of elements, sulfur and oxygen. But the oxygen is element. And I told you that whether substrate, reactant or both, any one is out of these is element, then the reaction is redox addition reaction. So in this reaction, one is compound but the other is element, and if any one is element, the reaction is example of redox addition reaction. अगर सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट दोनों ही एलिमेंट है तो भी रिएक्शन रेडॉक्स होगी, और अगर दोनों में से कोई एक भी अगर एलिमेंट है, दूसरा चाहे कंपाउंड हो, तो भी रिएक्शन एडिशन रिडॉक्स रिएक्शन होगी. सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिडॉक्स रिएक्शन. We can also check our answer by calculating the oxidation state. तो चलिए हम इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये रिडॉक्स है. एडिशन है ये तो प्रूफ हो गया, क्योंकि दो चीजें ऐड हो रही है और एक नया प्रोडक्ट बना रही है, तो ये एडिशन तो है. रिडॉक्स है या नहीं, इसके चेक करने के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखकर चेक कर सकते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर फॉर सल्फर एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इन जनरल -2. -2 एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है और हमारे पास दो ऑक्सीजन एटम है, टोटल हुआ -4. -4 अगर ऑक्सीजन है और पूरा मॉलिक्यूल 0 है तो सल्फर होगा +4. आप इसे x मानकर कैलकुलेट भी कर सकते हैं. ऑक्सीजन प्योर एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है. यहां अगर हम देखें, अब फिर से ऑक्सीजन -2 और सल्फर को x मानकर हम कैलकुलेट करेंगे. एक ऑक्सीजन -2 तो 3 ऑक्सीजन -6, सल्फर हुआ +6. अगर हम इन्हें ऐड करें तो हमारा टोटल 0 होगा. नाउ चेक इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. सल्फर +4 to +6 इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब सल्फर का हुआ है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीजन यहां से अगर हम देखें तो नो चेंज, -2 और यहां भी -2, यानी सल्फर के साथ वाला ऑक्सीजन ना ऑक्सीडाइज हुआ है और ना ही रिड्यूस. लेकिन रिएक्शन में एक और ऑक्सीजन है हमारे पास. अगर हम यहां से चेक करें प्रोडक्ट की तरफ तो 0 से -2 पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है. यहाँ O2 0 और SO3 का ऑक्सीजन -2 है. हम दोनों ही ऑक्सीजन से एरो प्रोडक्ट की तरफ ले जाएंगे. एक में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन, लेकिन दूसरा ऑक्सीजन चेंज हो रहा है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है. 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर इज बीइंग डिक्रीज्ड, so the reaction is reduction. So we can say that in this reaction sulfur is being oxidized and oxygen is being reduced, hence the reaction is redox in nature. So this is the example of redox addition reaction. So we can say that all the addition reactions having element in their reactant side, either substrate, reactant or both. If they are having any element in the reactant side, the reaction is addition redox reaction. The next type is decomposition redox reaction. What the decomposition reactions are? Whenever the compound is broken down into its constituting particles, either element or the smaller compound, reaction is known as decomposition reaction. Decomposition reaction में कोई compound
अपने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स में या तो एलिमेंट्स में या स्मॉलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें किसी कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अगर वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स की नेचर शो करती है, अगर उसमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसे डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो आइए हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। आप जानते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किसी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। ट्रायंगल का मतलब होता है प्रोवाइडिंग थर्मल एनर्जी। हमने उसे हीट किया है। अगर NaOH को ब्रेक डाउन किया जाता है, हीट किया जाता है, हमें मिलता है NaO, सोडियम ऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अ गैस इज रिलीज आउट, दैट इज हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो एक कंपाउंड है जिसको ब्रेक करने से दो चीजें मिली है, एक छोटा कंपाउंड और एक एलिमेंट। यहाँ हमें दोनों एलिमेंट मिल सकते हैं, दोनों कंपाउंड मिल सकते हैं, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिल सकता है। अगर किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मिलने वाले प्रोडक्ट में से कोई भी एक या सभी एलिमेंट है तो रिएक्शन रिडॉक्स होगी। यहाँ दोनों एलिमेंट नहीं है, यहाँ हमें एक कंपाउंड मिला है और एक एलिमेंट। अगर दोनों में से कोई एक भी एलिमेंट है या दोनों ही एलिमेंट है तो रिएक्शन रिडॉक्स होगी। और क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रहा है इसलिए इसे डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो आइए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के और पता करते हैं कि वो रिडॉक्स है या नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, जब इसे ब्रेक किया जाता है, डिकम्पोज करते हैं, हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। On the decomposition of calcium hydroxide we get calcium oxide and water. Observe the products carefully. Both the products are compound. दोनों ही कंपाउंड है, इनमें से एक भी प्रोडक्ट हमारा एलिमेंट नहीं है। अगर किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मिलने वाले प्रोडक्ट्स में कोई एलिमेंट नहीं है तो वो रिडॉक्स नहीं होगी। अगर आप इस रिएक्शन को चेक करो ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखकर तो देखोगे कि इसमें ना किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हुए भी रिडॉक्स नहीं है। द रिएक्शन इज नॉट रिडॉक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। When ammonia is broken down or decomposed, we get nitrogen gas and hydrogen gas. Both the products are element. So the reaction is decomposition as well as redox reaction. So the example is of decomposition redox reaction. तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट यदि सारे ही एलिमेंट या उनमें से कोई एक भी अगर एलिमेंट है तो रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन होगी। आप इन सभी रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन नंबर लिखकर इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग रिडॉक्स है या नहीं चेक कर सकते हो। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। What are displacement reactions? When
more reactive element or compound displaces the less reactive, the reaction is known as displacement reaction. In your class 10th, you have studied about displacement and double displacement reactions. Here we are studying the displacement redox reaction, which is further classified into two, that is metal and non-metal displacement. Metal displacement redox reaction and non-metal displacement redox reaction. So let us start with the metal displacement redox reaction. Whenever a more reactive metal displaces the less reactive metal, reaction is known as metal displacement reaction. As we know that like displaces like, metal will displace the metal. So whenever the more reactive displaces the less reactive metal, reaction is known as metal displacement reaction. A very common example which we have already studied is ferrous iron. When reacted with copper sulfate, we get iron sulfate and copper. When iron is reacted with copper sulfate, we know that out of two elements or two metals, iron and copper, iron is more reactive than copper. The reactivity of iron is more than copper as per the metal reactivity series. So whenever the more reactive element or metal substitutes or displaces the less reactive, here iron is displacing the copper and forming iron sulfate. आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद लग गया और बना आयरन सल्फेट और कॉपर अलग निकल गया. इस तरह से जब किसी मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस किया, रिएक्शन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है. अब ये रिडॉक्स है या नहीं, इसे चेक करते हैं. अगर किसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कहीं भी, चाहे रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, किसी भी साइड में, यानी पूरी रिएक्शन में कहीं पर भी कोई भी एक भी एलिमेंट है, तो वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगी. यहाँ अगर आप देखो तो रिएक्टेंट में एक एलिमेंट है और प्रोडक्ट में भी एक एलिमेंट है. कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, आयरन सल्फेट भी कंपाउंड है, लेकिन आयरन और कॉपर ये दोनों एलिमेंट हैं. हमें पूरी रिएक्शन में कम से कम एक एलिमेंट चाहिए. यहाँ हमारे पास दो एलिमेंट है, तो ये रिएक्शन 100% रिडॉक्स रिएक्शन होगी. और क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है. मेटल इज डिस्प्लेसिंग द मेटल, so it is the example of metal displacement redox reaction. Let's do one more example of metal displacement redox reaction. When zinc is reacted with lead chloride, zinc chloride and lead is formed. Here two metals are zinc and lead. If you remember the reactivity series of metals, you know that zinc is more reactive than lead. So if zinc substitutes or displaces lead from its compound, reaction is metal displacement reaction. Zinc is substituting the lead or displacing the lead from its compound to form zinc chloride, and lead is get free. So the reaction is metal displacement reaction. Again observe the reaction carefully. If reaction is having any element, अगर रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है,
1, 2, 3, 4 कितना भी, एक भी अगर एलिमेंट रिएक्शन में प्रेजेंट है तो वो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ देखिए जिंक एक एलिमेंट है, लेड क्लोराइड कंपाउंड है, जिंक क्लोराइड कंपाउंड है और लेड फिर से एलिमेंट है। 2 elements are present, so the reaction is redox. Displacement, metal displacement with redox, so it is also the example of metal displacement redox reaction. Now the second part of displacement redox reaction is non-metal displacement redox reaction. जैसा कि हमने मेटल डिस्प्लेसमेंट में देखा, मोर रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेसिंग द लेस रिएक्टिव मेटल, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल नहीं होगा। आप नाम से कंफ्यूज ना हो। डिस्प्लेस करने वाला दोनों ही कंडीशन में मेटल ही है। नाम किसे डिस्प्लेस किया गया है उसके अकॉर्डिंग बना है। पहले वाली रिएक्शन में हमने देखा मेटल इज डिस्प्लेसिंग द मेटल, मेटल ने मेटल को डिस्प्लेस किया, इसलिए मेटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेस करने वाला तो मेटल ही है, लेकिन डिस्प्लेस होने वाला नॉन मेटल है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने बोला कि लाइक डिस्प्लेसेस लाइक, फिर मेटल किसी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कैसे कर सकता है। देखो बेटा, नॉन मेटल्स में एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से रिजेंबल होती है। आपने क्लास 10th में जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स स्टडी किया, उसमें सेंटर में हाइड्रोजन भी था। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मेटल्स की तरह ही हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, पॉजिटिव कैटायन बना सकता है। इसीलिए कोई मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है। तो अगर कोई मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे, जो कि एक नॉन मेटल है, तो रिएक्शन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। डिस्प्लेस करने वाला मेटल ही है, लेकिन डिस्प्लेस होने वाला नॉन मेटल है, और कोई दूसरा नॉन मेटल ये काम नहीं कर सकता, कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, इसलिए केवल हाइड्रोजन के लिए ही ये वैलिड होता है। तो हम कहेंगे सपोज जिंक की रिएक्शन हमने करवाई HCl से, तो बना ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। जिंक रिएक्टेड विद ZnHCl acid gives ZnCl2 and hydrogen gas is released। यहाँ देखिए जिंक एक मेटल है और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल। जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और बनाया जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ एक मेटल ने, मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, तो रिएक्शन हुई नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। और ये रिडॉक्स है या नहीं, रूल फिर से पहले की तरह ही है। अगर पूरी रिएक्शन में कोई एक भी अगर एलिमेंट है तो रिएक्शन रिडॉक्स होगी। यहाँ फिर से अगर हम देखें, जिंक और हाइड्रोजन दोनों ही एलिमेंट हैं। अगर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो रिएक्शन रिडॉक्स होती है। यहाँ 2 एलिमेंट है, ये रिडॉक्स का एग्जाम्पल है, इसीलिए हम इसे कहेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। एक बार हम आपको फिर से ऑक्सीडेशन नंबर लिखकर प्रूव करके दिखा देते हैं कैसे किया जाता है। प्योर एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, जिंक +2, क्लोरीन -1 और प्योर एलिमेंट 0। अगर इस रिएक्शन को आप देखो, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है 0 से +2। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आ रहा है 1, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है +1 से 0।
यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, यानी क्लोरीन का ना ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में जिंक इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन इज बीइंग रिड्यूस्ड, both the reactions are taking place, oxidation as well as reduction, so the reaction is redox in nature. Metal is displacing the non-metal, reaction is redox. So collectively we can say that this is the example of non-metal displacement redox reaction. And the last type of redox reaction is disproportionation redox reaction. Disproportionation redox reaction. You have never heard this word previously. आपने disproportionation word पहले नहीं सुना है, ना ही ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ी है। तो हमारे लिए एक न्यू रिएक्शन है disproportionation redox reaction. क्या होती है disproportionation? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोपोर्शन इक्वल नहीं होता, यानी अभी तक आपने जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शंस देखी है उनमें किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन होता है। एंड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता, इनमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी दिखाता है और रिडक्शन भी शो करता है। तो देखते हैं कैसे। हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोजेज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। यहाँ हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखते हैं। हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -1। वैसे तो जनरली ऑक्सीजन -2 होता है, लेकिन ये परऑक्साइड है और परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। आप चाहें तो इसे x के मानकर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नाउ वाटर, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, यहाँ जनरल आएगा क्योंकि ये परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं है। ऑक्सीजन एलिमेंट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। नाउ चेक, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी ना तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है और ना ही रिडक्शन। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। रिएक्टेंट में एक ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में 2। दोनों के लिए एरो बनेगी, फर्स्ट एरो फॉर फर्स्ट ऑक्सीजन एंड सेकेंड एरो फॉर सेकेंड ऑक्सीजन। हम दोनों के लिए एक एरो बनाते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। नाउ लेट्स चेक। -1 ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस टू -2, -1 से -2, decrease in oxidation number, hence it is reduction. Now the next is -1 to 0, increase in oxidation number, so it is oxidation. यानी पूरी रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीजन का ही रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऐसी रिएक्शन जिनमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो करे उसे डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप ऑफ रिएक्शंस को कैसे पहचाना जाता है? इनमें वो एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसके पास ऑक्सीडेशन नंबर की एक रेंज होनी चाहिए, माइनस से प्लस की तरफ। आपने देखा था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है। ऐसे एलिमेंट्स इस तरह की रिएक्शंस नहीं बना सकते। तो वो एलिमेंट्स जिनके पास एक रेंज होती है जो 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा नहीं, 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करे, 3, 4, 5 ऑक्सीडेशन नंबर्स शो करे। ऑक्सीडेशन नंबर 2 से ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, 3, 4 हो। इसका मतलब है उसके पास इतनी तरह के ऑक्सीडेशन नंबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन,
ये -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर हमारा ऑक्सीजन दिखा सकता है। यानी ऑक्सीजन के पास 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने की कैपेसिटी होती है। इस तरह से अगर कोई भी एलिमेंट है जो 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है, वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में ऑक्सीडेशन नंबर -1, +1 से लेकर +7 तक होता है। यानी ये भी 8 ऑक्सीडेशन नंबर्स दिखा सकता है। तो क्लोरीन भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बना सकता है। तो वो सारे एलिमेंट जिनके पास एक रेंज होती है मिनिमम से मैक्सिमम की, और उस रेंज में कम से कम 3 ऑक्सीडेशन नंबर्स होने चाहिए, वो डिसप्रपोर्शनेशन बना सकता है। तो डिसप्रपोर्शनेशन की पहली रिक्वायरमेंट हो गई या कंडीशन हो गई, एलिमेंट must have more than 2 oxidation states। एलिमेंट की 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होनी चाहिए। अब उसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? सपोज किसी एलिमेंट के पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। एक कोई एलिमेंट है हमारे पास X, उसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अगर उन तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, छोटे से बड़े की तरफ रखें, तो जो सेंट्रल ऑक्सीडेशन नंबर होगा, अगर वो रिएक्टेंट साइड में है तो पहले और बाद वाले दोनों प्रोडक्ट में होंगे। अगर सेंट्रल ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट है तो बाकी के दोनों ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट की तरफ बनेंगे। और अगर पहले और बाद वाले रिएक्टेंट साइड में है तो सेंट्रल हमेशा प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। यानी कि हमारा जो सेंट्रल ऑक्सीडेशन नंबर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर बीच वाला जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बाकी दोनों से ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन का रिडक्शन होगा, और जब वही ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा, और तभी कोई रिएक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों शो करेगी। तो आइए हम H2O2 के एग्जाम्पल में ही इन चीज़ों को दोबारा समझते हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन वो एलिमेंट है जो 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो हम फिर से वही एग्जाम्पल लिखते हैं, H2O2 gives H2O plus O2। जहाँ हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखे थे +1, -1, +1, -2 और 0। ऑक्सीजन के पास कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर हैं? -1, -2 एंड 0। अगर इन तीनों ऑक्सीडेशन नंबर्स को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो बनेगा -2, -1 और 0। मैंने इन तीनों ऑक्सीडेशन नंबर्स को जो ऑक्सीजन की हमारी रिएक्शन में थे बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब हम चेक करते हैं सेंट्रल नंबर कौन सा है। -1 है बीच वाला ऑक्सीडेशन नंबर। जब ये डिक्रीज होगा तो बनेगा -2 और इंक्रीज होगा तो बनेगा 0। अगर ये डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन दिखाएगा और इंक्रीज होने पर ऑक्सीडेशन दिखाएगा। तो अब देखें -1 किस डायरेक्शन में लिखा है। -1 लिखा है रिएक्टेंट साइड में, तो बाकी के दोनों ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ होंगे? प्रोडक्ट साइड में। है या नहीं? चलो चेक करते हैं। ये देखो -2 और 0 दोनों ही आ गए प्रोडक्ट साइड में। अगर -1 प्रोडक्ट साइड में होता तो बाकी के दोनों रिएक्टेंट साइड में होते।
तभी ये रिएक्शन हमारी डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जैक्ट एग्जाम्पल बनती। तो आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए। यहाँ हमने रिएक्शन लिखी है P4 प्लस OH माइनस, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, गिव्स PH3 HPO2 माइनस। इस रिएक्शन में हम चेक करेंगे कि क्या ये डिसप्रपोर्शनेशन है या नहीं। अगर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स होगी। तो आइए चेक करें। पहले सभी के ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। प्योर एलिमेंट 0, O और H, O-2, H प्लस 1। PH3 में हाइड्रोजन हम जानते हैं +1, 3 हाइड्रोजन होने से मल्टीप्लाई हुआ +3 और फॉस्फोरस बनेगा इसका ऑपोजिट -3। यहाँ हम ऑक्सीजन जानते हैं -2, हाइड्रोजन +1, लेकिन फॉस्फोरस को हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं। HPO2 माइनस के लिए फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन प्लस फॉस्फोरस प्लस 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू चार्ज। किसी भी आयन का टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के इक्वल होता है। इस पर चार्ज माइनस है यानी -1 के इक्वल होगा। हाइड्रोजन होगा +1, फॉस्फोरस को x मानेंगे, ऑक्सीजन के लिए -2 इज इक्वल्स टू -1। सॉल्व करें। 1 + x -4 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 4 -1 -1, x इज इक्वल्स टू 2। यानी फॉस्फोरस के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मिला हमें +2। यहाँ लिख देते हैं हम +2 फॉर फॉस्फोरस। अब सभी के ऑक्सीडेशन नंबर्स हमने लिख लिए हैं। P4 0, O-2, H +1, यहाँ P -3, H +1, H +1, फॉस्फोरस +2 एंड ऑक्सीजन -2। अब चेक करते हैं किसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। तो आइए हम एरोज बनाते हैं। फॉस्फोरस से फॉस्फोरस की तरफ हमारे पास प्रोडक्ट में 2 फॉस्फोरस है, 1 और 2। तो दोनों के लिए अलग अलग एरो बनेगी जो एक ही जगह से निकलेगी। क्योंकि रिएक्टेंट में एक ही फॉस्फोरस है तो हम यहीं से दोनों एरो निकालेंगे। जब एक ही जगह से 2 एरोज निकलती है और वही अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिखाती है तो समझ जाइए डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल होगा। तो देखिए 0 से -3, 0 से +2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, दोनों ही -2 है। हाइड्रोजन +1 है सभी जगह, उसका भी चेंज नहीं हो रहा, यानी सिर्फ फॉस्फोरस ही चेंज हो रहा है। जब 0 से -3 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, ये रिडक्शन शो करेगा। 0 से +2 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन शो करेगा। यानी इस रिएक्शन में केवल फॉस्फोरस ही है जिसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं फॉस्फोरस कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर्स दिखा रहा है। सबसे पहले 0 जो रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में -3 और +2। 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस के इस रिएक्शन में यूज हुए हैं। पहली कंडीशन क्लियर है। अब सेकंड कंडीशन, तीनों को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। -3, 0, +2। माइनस से प्लस की तरफ जाएं तो यही हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा। देखें सेंट्रल नंबर है 0, कहाँ पर है? 0 है रिएक्टेंट साइड, तो आपके बचे हुए -3 और +2 होंगे प्रोडक्ट में। चेक कीजिए है या नहीं है।
इसका मतलब ये डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन का एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल हुआ। Now let us revise once again the types of redox reactions. There are 4 types: addition redox reaction, decomposition redox reaction, displacement redox reaction and disproportionation redox reaction. First of all, addition redox reaction. If reaction is having at least one element in the reactant side, the reaction is addition redox reaction. अगर रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में एक भी एलिमेंट है तो वो एडिशन रिडॉक्स रिएक्शन होगी। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, अगर किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में एक भी एलिमेंट है तो वो डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड। The third is displacement redox reaction. If reaction is having any element, at least one element in either reactant side or the product side, no side boundation is there. अगर रिएक्शन में कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन होगी, जिसे हमने फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया था। If more reactive metal displaces less reactive metal, the reaction is metal displacement reaction. And if more reactive metal displaces non-metal, that is hydrogen, the reaction is non-metal displacement reaction. And the last one is disproportionation redox reaction. Single element is getting oxidized or reduced in the reaction is known as disproportionation redox reaction. अगर एक ही एलिमेंट का रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो उसे हम डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। उस एक ही रिएक्शन में उस एलिमेंट के एटलीस्ट 3 यानी 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स यूज होने चाहिए। That element must have more than 2 oxidation states in a single reaction. और उन तीनों में से जो सेंट्रल ऑक्सीडेशन नंबर है वो रिमेनिंग 2 से ऑपोजिट साइड में होना चाहिए। The central oxidation number must be in the opposite direction of the remaining 2 oxidation numbers. सेंट्रल अगर रिएक्टेंट में है तो आगे और पीछे वाले दोनों ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट साइड में होंगे। इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शंस होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस फॉलो होती है तो हमारी रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन होगी। उम्मीद करती हूँ आपको टाइप्स ऑफ रिडॉक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार आप अपनी बुक में इसे अच्छे से रीड कीजिए, वीडियो को सिंसियरली स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारे नए ऐड होने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली क्लासेस ज्वाइन की है उन्हें आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और वो उस वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।